ये इनसे कहो ये O2 बायोलॉजी का दे गए हमें, ये O1 का दे, वो क्या O3 का। Okay class, that day we were studying about parts of a flower, right? And if you remember, we had stopped on stamen, right? We had stopped on stamen, और stamen पे जो है क्या कहते हैं हम Okay, we had stopped on stamen and we were studying about the stamen, and on the stamen I had told you that the stamen is the male part of the flower and it consists of the anther and the filament. ठीक है, ये दो चीजों से ये consist करता है. Let me sit down because I don't think so I will. Let's use paint like we used to. बेटा दिस इज नॉट ऑन एनी पेज नंबर, लेकिन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर होगा लाइबा इसके अंदर. सेम पिक्चर नहीं है लेकिन देयर इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, सो बेसिकली the stamen, right? The stamen consists of two parts. The lower part is known as the filament. That is what we studied. First stop talking. Okay, the lower part is known as the filament and the upper part is known as the anther. अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताई थी ये बात कि the stamen is also known as androecium, right? I told you there are two names for the stamen. The stamen is also known as androecium. So it consists of two parts, the filament and the anther. The anther consists of yellow structures, I told you, inside them, if you remember. Okay, the anther consists of yellow structures inside them. They are small grain-like structures, and these structures are known as pollen grains. What are they known as? Pollen grains. What are pollen grains? Haploid or diploid? Haploid, right. Okay, pollen grains are haploid male gametes of a flower. ठीक है, pollen grains are haploid male gametes of a flower. ठीक है, so the male part of the flower consists of two parts, that is the anther and the filament. ठीक है, the anther has pollen grains which are yellow in color, and these are haploid male gametes of the flower. I guess everybody knows what gametes are. Gametes are reproductive cells. ठीक है, okay, then the female part. The female part of the flower is known as the pistil, carpel or gynoecium, if you remember. Again, the female part had three names. ठीक है, it is either known as pistil, carpel or gynoecium. Right, these are the three names that are given to the female part of the flower. The female part of the flower consists of three parts. The uppermost part is known as the stigma. The neck is known as the style, and the lower swollen portion is known as the ovary. ठीक है, तो तीन पार्ट्स हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अच्छा, ओवरी के अंदर जो है आपका क्या होता है, बेसिकली फीमेल गैमीट होता है. ठीक है, और इस फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल.
The female gamete is known as the ovule. ठीक है, the female gamete is known as the ovule. पेज नंबर बताना है, मैं बुक नहीं लाई हूँ, जरा दो मैं पेज नंबर बता देती हूँ. एक it's very tedious to carry the book and the laptop and the purse and the water bottle. पता नहीं पानी की बोतल कहाँ रखी है all together, so I left the book. Okay, बेटा this is page 315. ठीक है, page 315. Is it clear till here? ठीक है, अच्छा, ovule just like the pollen grains, what are they? They are female haploid gametes, right? Ovules are female haploid gametes. चाहो तो लिख लो, these are female haploid gametes. बार बार मैं haploid का word use कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि they are containing half number of chromosomes. They are not actually containing the same number of chromosomes as compared to the parent cell. सही? अच्छा जी. Now there is an opening in the micropyle. सॉरी, देयर इज एन ओपनिंग. इस तरह का डिप्रेशन देख रहे हो, ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, आई एम श्योर. ठीक है, दिस डिप्रेशन हियर दैट यू सीन इज एन ओपनिंग इन द ओव्यूल नोन एज द माइक्रोपाइल. ठीक है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग इन द ओव्यूल through which sorry, एक मिनट. ठीक है, माइक्रोपाइल की मैं वो अलग जगह लिखवा देती हूँ. यहाँ तक क्लियर है? माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग इन द ओव्यूल. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, थ्रू द माइक्रोपाइल द मेल nucleus enters into the female gamete. ठीक है, माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? थ्रू द माइक्रोपाइल द मेल न्यूक्लियस, ठीक है, जो मेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, सही है, इट एंटर्स इनटू द फीमेल गैमीट, राइट? It enters into the female gamete. Any questions still here, beta? I guess it is clear. ठीक है, लिख लो ताकि I can remove the screen. अच्छा, नेक्स्ट वीक जब हम लोग लाइव जाएंगे तो मेक श्योर कि तुम लोग जब आते हो क्लास में तो चैट बॉक्स नहीं यूज करना. ठीक है, हैंड रेज कर लेना और फिर जब मैं बोलूं तो आप माइक यूज करना, ताकि मैं अभी यही बात कर रही थी, स्पीकर्स लगे हुए हैं. आई विल नॉट बी यूजिंग द हेडफोन एनी मोर. ठीक है, अभी तो उनका माइक यहाँ है. आई विल बी यूजिंग द पीसी, तो एवरीबडी कैन हियर योर क्वेश्चन एज वेल. And similarly we'll be using mics. ठीक है, तो everybody, you can hear everybody's question as well, right? तो एक काम कर, मेरा लैपटॉप चार्ज पे लगा है. Okay, so now we've gone through the male and female. लगा नहीं बेटा, डाल दे किसी का निकाल. Okay, now we've gone through the male and female parts of the flower. ठीक है,
we will be now starting with pollination. What do you know about pollination? I'm sure you must have studied about pollination in your previous classes. What is pollination? How will you define pollination? हाँ जी, कौन बोल रहा है? Dispersal of seed is pollination? No, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. What is pollination? तुम ऐसा ड्राइंग कर रही हैं? अच्छा ठीक. What is pollination? No idea? Transfer of pollen grains from the female part of the flower, from the male part of the flower to the female part. Transfer of pollen grains from the male part of the flower to the that is known as pollination. यानी अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ये चीज़, ठीक है, तो ये इस तरह से है कि ये हमारा कार्पेल है, ठीक है, एंड दैट इज आर मिस, सॉरी मैंने अटेंडेंस ली नहीं है, मुझे 5 मिनट दे दे, 5 मिनट में, ठीक है, एंड दैट इज द एंथर, ठीक है. एंथर के अंदर वी आर अवेयर दैट इट हैज येलो कलर pollen grains, ठीक है, a powder form. So when these pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the carpel, ठीक है, when these pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the carpel, this process is known as pollination. जाहिर है fertilization करवाने के लिए, I guess everybody remembers what fertilization is, fusion of male and female gamete. तो fertilization करवाने के लिए male and female gamete को fuse करना है, ठीक है. अब मेल जो है वो एंथर पे है और फीमेल जो है वो आपका यहाँ ओवरी के अंदर प्रेजेंट है इस जगह पे. तो जब तक मेल गैमीट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो सकेगा. सो दैट इज द रीजन फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस so that the pollen grains from the male part of the flower are transferred to the female part of the flower. Am I making myself clear? Okay. So there are two kinds of pollinations, ठीक है. Types of pollination क्या है? एक है self pollination, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. अच्छा, अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, मैं इसको इलस्ट्रेशंस भी दे दूंगी. सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन द same plant, same flower or separate flowers on the same plant, ठीक है. Male and female pollination takes place between male and female parts in the same flower और सेपरेट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, यानी प्लांट सेम होना चाहिए, चाहे एक ही फ्लावर हो या सेपरेट फ्लावर्स हो, प्लांट सेम होना चाहिए. जबकि क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन separate flowers on separate plants, ठीक है. So cross pollination takes place between separate flowers on separate plants, and self pollination takes place between same flower or separate flowers on same plant. Now if we look into
the diagram you can see here, ये part आप छोड़ दीजिए, gynotogamous pollination, this is and this is both is self pollination. ठीक है, you can see within a flower हो रहा है, यहाँ से male part से लेके female part पे जा रहा है, ठीक है, या फिर मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट पे जा रहा है, एंड यू कैन सी दैट इट इज द सेम प्लांट, द स्टेम इज द सेम. लेकिन इफ इट इज अकरिंग फ्रॉम अ सेपरेट फ्लावर ऑन अ सेपरेट प्लांट to another flower on another plant, then what is it known as? Cross pollination. ठीक है, so the blue and the green are self representing self pollination, ठीक है, and the red one is representing cross pollination. Clear everybody till here? Okay. Now there are two factors that enable pollination. Okay, there are two factors that enable pollination. One is the wind and the other is the insect. ठीक है, insects भी pollination करवाती हैं और wind भी pollination करवाती है. Insects कैसे pollinate जो है क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे, इस पे प्रेजेंट लगाते हुए जरा पीछे कर दो आपने. अच्छा एक लगा जी. और विंड भी फैक्टर्स, they are factors that carry out the process of pollination. pollination खुद ब खुद नहीं हो सकती, जाहिर है कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो pollination करेगा. ठीक है, तो जो फैक्टर pollination करवाते हैं उसमें कौन है? एक इंसेक्ट है and the other is wind. जल्दी से सर्कुलेट द अटेंडेंस शीट, हरी आप. इससे भी पेंट वाली, अच्छा ये कर लिया आप लोगों ने, ये वाली बेटा वीनस आप भी ड्राइंग कर रही है या कलरिंग कर रही है, क्या कर रही है? Wind and insect. There are. Can I remove this slide as well? No. Okay. ठीक है. There are two factors that enable the process of pollination. One is wind. वो वाली line. सबकी हो गई. There are two factors that carry out the process of pollination. One is wind and the other is इंसेक्ट्स. अच्छा जी, इंसेक्ट्स कैसे पॉलिनेशन करवाते हैं? इंसेक्ट्स इस तरह से होता है कि मैंने आपको बताया था फ्लावर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे एंड वी वर स्टडीइंग अबाउट द पेटल्स, तो उसमें आई टोल्ड यू दैट द पेटल्स हैव कलर्ड पेटल्स, सेंटेड होते हैं, उनमें नेक्टरी गाइड्स होती हैं. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? दे एक्चुअली अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स ताकि वो फ्लावर के पास नेक्टर लेने आए. जब फ्लावर के पास वो नेक्टर लेने आते हैं तो होता क्या है कि जो है क्या कहते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एंथर्स से ब्रश करती है. ठीक है, टकराती है तो उनकी बॉडी टकराएगी, हल्की सी ब्रश करेगी, तो द pollen grains from the anther will be transferred to their body. और जब वो वही मजीद नेक्टर लेने के लिए अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं या थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ, तो अगेन उनकी बॉडी अगर स्टिग्मा से ब्रश कर जाती है इसी प्रोसेस में, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो pollen grains उनकी बॉडी पे स्टिक हुए हुए होंगे, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू द stigma. So that is actually how the insects play a role in transferring of pollen grains. अच्छा, विंड कैसे करती है? विंड जो है जाहिर है वो हवा आती है और उड़ाती भी ले जाती है, उसी उड़ाने में वो पॉलन ग्रेन्स जो है जाके
दूसरे फ्लावर पे या उसी फ्लावर पे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे वो जाके पॉलन ग्रेन्स लैंड कर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। बेटा ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपके या फिर विंड के साथ उड़े, इट एक्चुअली गोज एंड लैंड्स अप ऑन अ स्टिग्मा। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 40% लैंड अप ऑन अ स्टिग्मा एंड क्या कहेंगे 60% जो है वो आपके डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। That is the reason why the male gamete is always larger in number. ठीक है, चाहे ह्यूमंस में हो यानी एनिमल्स में या प्लांट्स में, मेल गैमीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस लार्जर इन नंबर बिकॉज उसकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वेस्टेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि फीमेल गैमीट कभी भी लार्ज नंबर में नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, फीमेल गैमीट प्लांट्स में तो जो है क्या कहते हैं, डेफिनेटली जितनी सीड्स होती हैं पौधे में उतने गैमीट्स होते हैं। बेसिकली ओव्यूल वी विल स्टडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड द ओवरी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो जितनी फल आप खाते हैं, हर फल में एक डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सीड्स होती है। ठीक है, जैसे एप्पल्स में और ऑरेंजेस में बहुत सारी सीड्स हैं, लेकिन मैंगो और पीच में एक ही सीड है। ठीक है, तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सीड के कौन सा प्लांट कितना ओव्यूल प्रोड्यूस करता है। लेकिन एनिमल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक ही ओवरी जो है वो एक गैमीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एवरी मंथ, और कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून जो है द नंबर ऑफ गैमीट्स कैन वेरी, 1 से 2 हो सकते हैं। लेकिन जब वो पढ़ेंगे। लेकिन मेल्स हमेशा, चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो, उनका गैमीट का नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि वेस्टेज की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन मैं वही बात है कि ज़रूरी नहीं है हर पॉलन ग्रेन जो हवा उड़ाती हुई लेके गई है वो जाके स्टिग्मा पे ही लैंड करे। There are chances that it never lands on a stigma and it never gets fertilized. Is it clear? So that is the reason why pollen grains are larger in quantity as compared to the female gamete, which is the ovule. Okay, now when we study factors that enable the process of pollination, you need to know that certain plants are wind pollinated plants and certain plants are insect pollinated plants. ठीक है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों प्रोसीजर्स भी फॉलो कर लेते हैं, थोड़े फ्रेंडली किस्म के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली इंसेक्ट्स पे रिलाई करते हैं फॉर पॉलिनेशन, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली विंड पे रिलाई करते हैं। तो उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, यू हैव दिस इन योर बुक्स ऑल्सो, प्लस माइनस करके। दिस इज ऑन पेज नंबर 320। पेज नंबर 320 पे टेबल 20.1 है। ठीक है, प्लस माइनस यही है। ठीक है, क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पे जो पेटल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं, एंड दे हैव नेक्टरी गाइड्स। जो गाइडलाइन फॉर इंसेक्ट्स इनटू द फ्लावर है उसे क्या कहते हैं, नेक्टरी गाइड्स। आप गाइडलाइंस नहीं लिखोगे, आप नेक्टरी गाइड्स का वर्ड यूज करोगे बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर वर्ड। एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं अव्वल तो होते ही नहीं है। आपने देखा है जंगली जो पौधे घास वास में ग्रो करते हैं उसके अंदर हम कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स जो है वो लंबे लंबे नजर आते हैं, वो बेसिकली विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं। उनमें आपको कोई पेटल नजर नहीं आता, अक्सर सिर्फ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फेदरी उनके स्टिग्मास और एंथर्स होते हैं बेसिकली वो। तो अगर होते भी हैं तो बहुत स्मॉल डल कलर्ड होते हैं, सेंटेड बिल्कुल भी नहीं होते या फिर होते ही नहीं। अच्छा, नेक्टर की बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में डेफिनेटली नेक्टराइन्स होती हैं, नेक्टर्स होते हैं, वही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर एब्सेंट होता है, अगर होगा भी तो थोड़ा सा होगा वरना बिल्कुल नहीं होगा मेजॉरिटी में। अच्छा, स्टेमन है, टी गलत इन्होंने लिखा हुआ है, स्टेमन है ये, दिस इज अ स्पेलिंग एरर। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर whereas here it is actually the stamens are long filaments, like the stamens are long filaments
and they are pendulous, they are hanging outside the flower. किस तरह से hang करते हैं, ठीक है? If you look here, this picture, you can see here in the hibiscus, it is hanging outside the flower. I'm sure you must have seen the hibiscus. ठीक है, hibiscus में क्या होता है, the stamen and the anthers, they are all hanging outside the flower, so that is what pendulous means, right? So basically this is what is इट मीन्स हैंगिंग आउट. हैंगिंग आउट से एक फायदा और ये होता है कि जब पेटल से बाहर निकला हुआ होगा, जो फिलामेंट होगा या एंथर होगा या स्टेमन होगा, सब पेंडुलस होंगे, हैंगिंग आउट होंगे, तो हवा जो उड़ाती हुई ले जाएगी उनको आसानी से वो क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे. क्लियर? अच्छा, स्टिग्मा, small sticky inside the flower, insect rubs against it. अभी मैंने बताया था बॉडी ब्रश करती है, जबकि इसका क्या है, अगेन large feathery hanging outside the flower to catch the pollen grain. यही बात मैंने अभी आपको बताई है स्टेमन और स्टिग्मा दोनों के लिए. स्टिग्मा की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ए होता है, ई नहीं होता. अच्छा, पॉलन ग्रेन पे भी सवाल आता है. यहाँ तो पॉलन ग्रेन पे इन्होंने 3-4 लाइंस में दिया है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली पॉलन ग्रेन का भी 2 मार्क का सवाल आ जाता है, जहाँ पे यू हैव टू कंपेयर द पॉलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस तरह का है, इट्स स्मॉलर इन अमाउंट, यानी क्वांटिटी उनकी कम होती है, क्योंकि जाहिर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का पॉलन ग्रेन की वेस्टेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, हवा वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि हवा उड़ाता हुआ ले जाएगा, कहाँ उड़ा के ले जाता है हमें पता नहीं है. तो दोनों की क्वांटिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होगी और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, उसके अलावा ग्रेन राउंड होगा, स्टिकी होगा, स्पाइक्स होंगे उन पे टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अटैच नहीं है, अटैच टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स होगा ये. ठीक है, मैं 1 मिनट में तुम्हें दोनों की तस्वीरें दिखा रही हूँ जरा. ठीक है, जबकि इसकी ग्रेन कैसी होगी, स्मूथ होगी, लाइट वेट होगी, ताकि आसानी से विंड से कैरी हो जाए. ठीक है, अच्छा, दोनों की तस्वीरें जरा देखते हैं हम. ये आइडेंटिफाई करने को इसी तरह की तस्वीरें आपके पास आ जाती हैं. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, कभी भी कोई पॉलन ग्रेन नजर आए जिसपे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर या कुछ थॉर्न्स या कांटे नजर आए और आपसे पूछा जाए कि ये पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से है या विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से है, तो अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, दिस इज एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है, और अगर आपको स्मूथ लाइट वेट इस तरह से स्ट्रक्चर राउंडेड नजर आएगा तो आप क्या कहोगे, ये पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से. आइडेंटिफाई करके आपको सवाल में दिया जाएगा कि दिस इज अ पॉलन ग्रेन. You will have to look at the pollen grain and identify whether it's an insect pollinated flower pollen grain or a wind pollinated. वैसे normally जितने भी सवाल आज तक आए वो सब insect pollinated पे ही आए. ठीक है, क्योंकि wind pollinated तो बिल्कुल smooth एक सेल की तरह नजर आता है. ठीक है, so is it clear how you will be identifying them? अच्छा, फिर उसके बाद bracts modified leaves होते हैं. These are actually absent in the insect pollinated flower and they are present in the male pollinated flower. अगर तुम पेज 321 देखोगे, ये वाली इमेज, ये वाली ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इसके अंदर तुम लोगों को ये जो पत्ते नुमा कर्व्स नजर आ रहे, ये वाले पत्ते नुमा कर्व्स, ठीक है, ये क्या है, ये आपके ब्रैक्ट्स हैं. ठीक है, मैं लेबल करके बताऊं ताकि सबको नजर आए. पेंसिल, ये देखो, ठीक है, ये क्या है आपके ब्रैक्ट्स. ठीक है, और ये सिर्फ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में होंगे, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में नहीं होंगे. इज इट क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? श्योर? बस ये आज के लिए इतना ही. वी विल स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगर मैं फर्टिलाइजेशन अभी शुरू कर दूंगी तो हाँ
केबल लगा दूं दोबारा? अच्छा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये फ्लावर देख रहे हो, ठीक है? दिस इज अ रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर एंड दिस इज अ बायलैटरल फ्लावर। थोड़ा सा सिर्फ सुन लो ये चीज। रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर का मतलब है उसको किसी भी तरफ से काटो वो इक्वली कटेगा, यानी अगर मैं यूं काटूंगी तब भी दोनों हाफ्स इक्वल होंगे, मैं यूं काटूंगी तब भी दोनों हाफ्स इक्वल होंगे, मैं किसी भी तरह से उसको काट रही हूँ, ठीक है, दोनों हाफ्स बिल्कुल इक्वल एंड आइडेंटिकल होंगे। दिस इज अ रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। जबकि ये वाला बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब है अगर मैं इसको सिर्फ एक ही एंगल में काट सकती हूँ तभी मेरे पास सिमिलर हाफ्स आएंगे, ठीक है? अगर या तो मैं इसको यूं काटूंगी तो हमारे पास सिमिलर हाफ नहीं आएंगे, ठीक है? मैं सिर्फ इसको वर्टिकली काट रही हूँ बायलैटरली तो मेरे पास सिमिलर हाफ आएंगे, ठीक है? बस इतना अभी पता कर लो, बाकी मैं बताऊंगी। अच्छा 1 मिनट, एक मेरे पास ये वाली भी है, मैं खैर दोनों डाल दूंगी तुम लोग के एलएमएस पे, तो तुम लोग दोनों देख सकते हो। ये भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, और ये वाली भी मैंने तुम्हें दिखाई है ना, ये देख लो। चलो, कभी नहीं डाली है कोई चीज, देर से आती है लेकिन आ जाती है ना? तुमने कौन सा फॉरेन पढ़ना होता है? ये उतार ले तो मैं अभी हाथ के हाथ डाल, ये उतार ले तो मैं अभी हाथ के हाथ डाल।